हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। 24 अगस्त। सम्राट अकबर का मुख्यमंत्री टोडरमल था। टोडरमल एक हिंदू था। मुसलमान सम्राट भी हिंदुओं को अपना विभाग प्रमुख बनाया करते थे। उन पदों के लिए उन्हें मुसलमानों पर भरोसा नहीं था। वे जानते थे कि मुसलमान विश्वसनीय नहीं हैं। वे अपने पिता तक की हत्या कर सकते हैं। नई दिल्ली, 24 अगस्त 1974। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। So Krishna likes to be related with his devotee as father and mother. Here in this material world, we try to make our relationship with the Supreme as father, but Krishna wants to become the son. Therefore, Nanda Gopal, he takes pleasure to become a devotee's son. The ordinary man, they want God as father, but that is not very pleasing to Krishna. Father means, to become father means always botheration, give me this, give me this, give me this, give me this. You see? Of course, Krishna has got immense potencies to supply. Eko ju bahunam vidudati kama. He can supply everyone as much he wants. He is supplying food to the elephant. He is supplying food to the ant. Why not to the human being? But these rascals, they do not know. They are working day and night like ass to find out bread. And if he goes to church, there also, give me bread. They are only bread problem, that's all. Although the living entity is the son of the richest, opulent person, but he has created his bread problem. This is called ignorance. He thinks that if I do not solve my bread problem, if I do not drive my trucks day and night, that's such a nonsense civilization, you see. Bread problem. Where is bread problem? Krishna can supply, if he can supply food to the elephant. In Africa there are millions and millions of African elephants, you know, and they are supplied food. Then Bhagavad says, don't waste your time for this bread problem. Don't waste your time. Tasyaiva heta prajateta kovida na labhati jad brahmatam uparjat. Don't waste your time. How to solve your economic problems? This is nonsense. Of course, it is very revolutionary. People will hate me. The what Swamiji is speaking. But actually this is the fact. This is another madness. Suppose you have got your rich father, enough food, where is your economic problem? This is madness. There is no economic problem. If you know that my father is the richest man of this city, then where is my economic problem? Actually that is the position. We have no economic problem. Everything is there, complete. Purnam, Purnamada, Purnamadam, Purnat Purnamudachyati. Everything is complete there. You want water, just see, there are oceans of water. You want purified water, you cannot, although the ocean water is so much, when there is scarcity of water, you have to take help of Krishna. He will evaporate the water, he will make it cloud, then when it falls down, then it becomes sweet, otherwise you cannot touch. Everything under control. Everything is full, water, light, heat, everything is complete. Purnat Purnamudachyate, Purnasa Purnamadaya, Purnameva avashishyate. His talk is never finished. Simply you become obedient and
the supply is there. You can understand. These Krishna consciousness persons, they have no problem, economic problem. Everything is sufficiently supplied by Krishna. In Los Angeles, the neighbors, they are very envious. You do not work, you have no anxiety, and you have got 4 cars, you are eating so nicely. How is that? They inquire from our devotees. That is the actual fact. We are spending so much money, we have got so many centers, the calculation is about $70,000 we are spending. We supply. Somehow or other we are getting. So there is no problem. You simply become sincere servant of Krishna, everything is there. This is the test. हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 13। यज्ञ शिष्टासिन संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुंजते ते तो अघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए गए भोजन अथवा प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपनी इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। ये प्रश्न बार बार उठता है कि इस संसार में हर जगह पाप ही पाप हो रहा है, कैसे हम पाप से बचें? अच्छा, जो पाप करना चाहते हैं उसमें से भी कुछ है, करना चाहते भी हैं क्योंकि वो इंद्रिय तृप्ति में लगना चाहते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कैसे हम अपने जो पाप हो रहे हैं हमसे उससे अपनी रक्षा करें या पाप न करें। पूर्व काल में वैदिक जो काल था उसमें यज्ञ होते थे, अब यज्ञ हो गया है बंद, और कुछ पाप ऐसे होते हैं हम न चाहते हुए भी करते हैं। जैसे हम चलते हैं तो छोटे छोटे जो कीटाणु होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। हो सकता है हम हाथ चला रहे हो तो उसमें कुछ कीटाणु हवा में हो, उनकी मृत्यु, उनके लिए तो बड़ा झटका है ना। जब आप झाड़ू लगाते हैं, जब आप गैस चालू कर दे, बहुत देर से गैस बंद पड़ा है तो वहां पे कीटाणु सेट हो जाते हैं, अपना घर बसा लेते हैं। जैसे आप गैस चालू करते हैं फिर क्या होता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये हम देखते हैं कि न चाहते हुए भी पाप होते हैं, बोलते समय खाते समय पाप होते हैं। इन पापों से कैसे रक्षा हो? तो इन पापों से भी रक्षा हो सकती है क्योंकि ये हम जानबूझ के नहीं कर रहे हैं। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं जो भगवान के भक्त होते हैं, संत किसे कहा जाता है? जो हर समय हर जगह पे भगवान को देखता है। संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्म संहिता में कि संत सदैव, जो संत होते हैं सदैव अपने हृदय में भगवान को देखते रहते हैं। तो ऐसे भगवान के जो भक्त हैं, जो संत हैं, वे यज्ञ करते हैं, और यज्ञ में जो अर्पित हविष भोजन जो प्रसाद के रूप में हमारे पास आता है, उसको खाने से हम पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो कोई नास्तिक होगा वो पूछेगा ऐसे कैसे, ये क्या सिस्टम हो गया? यज्ञ कर दिया, कुछ मंत्र बोल दिए, स्वाहा स्वाहा कर दिया और सब शुद्ध हो गया। तो अभी संसार को छोटे से एक कीटाणु ने, वायरस ने बहुत शिक्षा दी। अब आपके हाथ में कीटाणु है, आप क्या करते हो? पंप लेते आते हो, हाँ, उसको 2-3 बार स्प्रे करते हो, सैनिटाइजर, कीटाणु खत्म। तो वैसे ही जो सूक्ष्म चीजें होती हैं वो खत्म हो जाता है यज्ञ करने से। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि यज्ञ से धुआं होता है, पॉल्यूशन होता है। बिल्कुल सही बात, यज्ञ से धुआं होता है लेकिन पॉल्यूशन नहीं होता। एक साइंटिस्ट ने इंडिया में रिसर्च किया, वो जो आम की लकड़ी जलाते हैं ना यज्ञ में, उसमें 50 ग्राम देसी घी डाल दीजिए। 50 ग्राम देसी घी डालने से और उसमें जो जलता है, जितना धुआं निकलता है उससे 1 टन ऑक्सीजन बनता है। 50 ग्राम घी से 1 टन ऑक्सीजन।
सोचिए ऑक्सीजन की कमी हो या फ्रेश वातावरण चाहिए तो आप यज्ञ कीजिए। पहले, आज भी तो होता है लेकिन कम जगह होता है, पहले घर घर में यज्ञ होते थे तो उसकी सुगंध आती थी। एनीवेज, अब वो यज्ञ पॉसिबल नहीं है, न सामग्री है शुद्ध, न हमको यज्ञ करने आएगा, रोज हम करने बोलेंगे तो होगा नहीं। इसलिए भगवान यहाँ बता रहे हैं एक अलग प्रकार का यज्ञ। वो क्या है? क्योंकि यज्ञ में क्या होता है, यज्ञ में मुख्यतः क्या होता है, अग्नि होती है। अग्नि मतलब ब्रह्मा, भगवान का मुख है, ठीक है। अग्नि मतलब भगवान का मुख। फिर क्या होता है, फिर ब्राह्मण होता है, यजमान होता है। और जब ब्राह्मण अपने लिए करता है तो खुद ही ब्राह्मण है, खुद ही यजमान भी है। तो ठीक है, एक भक्त बोल सकते हैं हम। भक्त हो गए, भगवान हो गए। अब सामग्री डालनी है, वो सामग्री हो गई आपने जो भोजन बनाया। अब आप घर में भोजन बना रहे हैं, लंच हो, डिनर हो, ब्रेकफास्ट हो, 1-8 घंटा लग जाता है। तो 1-8 घंटा जो आपने तैयारी की, अब क्या करना उसको, भगवान का एक सुंदर सा फोटो लीजिए, बढ़िया जगह पे रखिए, थोड़ा अच्छा से, वही मंदिर हो गया आपका। एक थाली लीजिए, कुछ कटोरियां, कुछ चम्मच, गिलास, उस थाली में चावल, रोटी, कटोरियों में सब्जी, दाल, गिलास में पानी, सब बढ़िया से सजा के। हम थोड़ी बोल रहे हैं, या भगवान थोड़ी बोल रहे हैं कि सोने का थाली दो, चांदी का थाली दो, स्टील का भी चलेगा, क्या दिक्कत है। उसमें सब भोजन जो आपने पकाया उसको रखिए, तुलसी का एक एक पत्ता डालिए, भगवान के सामने रखिए। अब मंत्रोच्चारण तो आता ही नहीं, यहाँ फंस गए फिर से। तो भगवान तो है और आप भगवान के भक्त हैं जो भगवान के लिए यज्ञ करना चाहते हैं। यज्ञ की सामग्री भी हो गई भोजन, अब मंत्र कौन पढ़ेगा? तो बड़े सिंपल मंत्र हैं, अगर वो नहीं भी आता नो प्रॉब्लम, आप भगवान के सामने भोजन रख के 12 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए और फिर उस स्थान को छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी आपने भगवान का आह्वान करके भगवान को जो है वो अर्पित किया है, तो भगवान को थोड़ा टाइम तो दीजिए खाने के लिए, तो भगवान वो भोजन को पाएंगे। और 5-6-7 मिनट बाद आप आके वो भोजन वहां से ले लीजिए, भगवान को प्रणाम करके, धन्यवाद बोल के। तो ये हो गया आपका प्रसाद। तो आप हो गए भक्त, ये फोटो हो गया भगवान, क्योंकि भगवान 8 अलग अलग प्रकार से प्रकट होते हैं इस संसार में, उसमें एक फोटो है, पेंटिंग। तो ये हो गए भगवान, ये हो गए भोग की सामग्री, आपने बोल दिए मंत्र। अब ये हो गया प्रसाद, भगवान भी प्रसन्न, आप भी प्रसन्न। और जब आप इसको पाते हैं, जब इस प्रसाद को खाते हैं और सारे घर में सबको खिलाते हैं, तो क्या होता है, इससे हमारी चेतना शुद्ध होती है। देखिए, एक होता है पाप और उसका परिणाम। तो चलिए, परिणाम को ही तो हम परेशान है ना, परिणाम को लेके हम परेशान है कि पाप का फल मिलेगा। ठीक है, एक तो हो गया उसको काटना, लेकिन आप जितना परिणाम जो होता है पाप का फल काटते रहेंगे, सफाई करेंगे, लेकिन नया जो है फिर से फल आ रहा है, क्यों? क्योंकि पाप करने की प्रवृत्ति है ना, वो तो फैक्ट्री चालू है 24 घंटा। सो भी जाते हैं तो नींद में पाप करते हैं, तो 24 घंटा वो फैक्ट्री जो हृदय में है वो चालू है, और सबके हृदय में फैक्ट्री है। इसीलिए उस पूरी फैक्ट्री को बंद करना है, पाप करने की प्रवृत्ति को खत्म करना है। जैसे उदाहरण श्रीमद् भागवत में दिया कि एक जंगल है और पूरा जंगल को आग लगा दीजिए, सारा जंगल साफ हो गया, और वहां सिर्फ भूमि है, कुछ और नहीं, सारे पेड़ जल के हो गए, सब आपने हटा दिया, पूरा साफ हो गया। कुछ महीने रुक जाइए, बारिश आएगी, ये वापस उगेंगे। क्यों? क्योंकि अंदर जड़ है अभी भी भूमि में। तो पाप करने की प्रवृत्ति हृदय में जब तक है तब तक पाप होते रहेंगे। तो एक ही कारण है, एक ही ऐसा उपाय है जो पाप करने की प्रवृत्ति को भी खत्म करेगा, फल को तो खत्म करेगा
जिससे हमको दुख नहीं भुगतना पड़ेगा, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति को खत्म करेगा, जिससे हमारा भविष्य सुधर जाएगा। आज हम जो अभी दुख प्राप्त कर रहे हैं अपने जीवन में, क्योंकि हमने कभी ना कभी इस जन्म में या पूर्व जन्मों में पाप किया है, तभी दुख भुगत रहे हैं। ये इतना कोरोना का आना, या आजकल हीट वेव का, इतना हीट वेव जल्दी भी आ गई और लंबी लंबी हीट वेव है, 7-7 दिन चल रहा है, इतना गर्मी, फिर बारिश आए तो एकदम बारिश आ जाएगा। तो ये प्रॉब्लम, ये क्यों हो रहा है? ये एक कलेक्टिव पाप हो रहा है, पूरे समाज में पाप चल रहा है। तो एक ही ऐसा उपाय है जो पाप करने के प्रवृत्ति को और फल को, दोनों को नष्ट कर देता है, और वही है भक्ति का उपाय। तो उसमें सिंपल 2 चीजें करनी है, हरि प्रसाद और हरि नाम। हरे कृष्ण महामंत्र जप कीजिए और भगवान को भोग लगा के प्रसाद खाइए, ये हो गया हरि प्रसाद। जो भगवान को भोग लगा के नहीं खाता है वह पाप खाता है, भगवान कह रहे हैं। क्यों? जैसे आप कमा रहे हैं पैसे लेकिन गवर्नमेंट को टैक्स नहीं भर रहे हैं, तो फिर आप क्रिमिनल कहलाते हैं। तो भगवान ने इतना सब हमें दिया है, तो भगवान को हम अर्पित करते हैं। और ऐसा नहीं कि भगवान खा जाते हैं, भगवान दृष्टिपात करते हैं। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमान्ति, ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं कि भगवान एक अंग से दूसरे अंग का कार्य कर सकते हैं। भगवान आंख से खा भी सकते हैं, आंख से सुन भी सकते हैं, आंख से बोल भी सकते हैं। भगवान प्रकृति पे एक दृष्टिपात करते हैं तो प्रकृति गर्भवती हो जाती है, सब जन्म लेते हैं जीव। तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो भगवान उस भोजन को जिसको आपने रखा उसको देखते हैं, और आपने जो मंत्र बोले उसको सुनते हैं, और आपकी श्रद्धा के अनुसार भगवान उस पर कृपा पात्र जो है कृपा डाल देते हैं। और फिर वो जो प्रसाद है, प्रसाद प्रभु का साक्षात दर्शन, जब आप प्रसाद पाते हैं तो आपका हृदय शुद्ध होता है और पाप करने की प्रवृत्ति खत्म होती है, और हरे कृष्ण महामंत्र जो है उसको भी अच्छे से ध्यान पूर्वक आप जप कर सकते हैं। हरे कृष्ण।